हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए कि हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में ये सफिशिएंट नहीं होता to have an elected government at the center and at the state level. It is also necessary that even at this local level there should be an elected government to look after local affairs. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमारी कंट्री में, एंड वी विल ऑल्सो स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड वेज टू गिव देम इंडिपेंडेंट पावर्स. आफ्टर studying this chapter you will know the importance of local government प्रोविजंस जो कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हुए, एंड लोकल बॉडीज के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो क्यों जरूरत पड़ती है लोकल गवर्नमेंट की. सो गीता राठौड़ की हम यहाँ पे स्टोरी देखते हैं. शी बिलोंग्स टू जमुनिया तालाब ग्राम पंचायत, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश. शी वॉज इलेक्टेड सरपंच 1995 में फ्रॉम अ रिजर्व सीट, बट 2000 में क्या हुआ, विलेज पीपल रिवॉर्डेड हर फॉर हर admirable work by electing her again, this time from a known reserved seats. From a housewife, Geeta has grown into a leader displaying political farsightedness. She has harnessed the collective energy of her panchayat to renovate water tanks, build a school building, construct village roads, fight against domestic violence and atrocities against women, create environmental awareness and encourage afforestation and water management in her village. ये एक लेडी के बारे में बताया है कि वो कैसे मल्टीटास्किंग है और वो कैसे एक विलेज पंचायत की मेंबर हो के क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस ला रही है अपने गांव में. एंड 2 बार उसको चुना जाता है, एक बार रिजर्व सीट से, दूसरी बार रिजर्व नॉन रिजर्व सीट से. तो यहाँ पे ये एक स्टोरी है. So there is another story of yet another woman achiever. She was the president Sarpach of a Gram Panchayat of Vengai village in Tamil Nadu. 1997 में क्या होता है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट अलॉट करती है 2 hectares of land to 71 government employees. This piece of land fell within the vicinity of this Gram Panchayat. On the instructions of higher authorities, district collector of कांचीपुरम डायरेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत कि आप एक रेजोल्यूशन पास करो endorsing the allotment of the said land for the purpose already decided. President and the Gram Panchayat refused to pass such an order and the collector issued an order to acquire the land. The president and the Gram Panchayat refused to pass such an order and the collector issued an order to acquire the land. The Gram Panchayat filed a writ petition in the Madras High Court against the collector's action. Single judge bench of the High Court upheld the collector's order and ruled that there was no need to take the Panchayat's consent. Panchayat appealed to the division bench against the single judge's order. In its order, division bench reversed the order of the single judge. Judge held that the government order amounted to not only infringement of the powers of the panchayat but a gross violations of the constitution status of the panchayat. So stories are not isolated incidents, represents करते हैं larger transformation that is taking place across India, especially after constitution status was accorded to local government institution in 1993. So local government, if we describe what is local government, then it is the government at the village level and at the district level. It is a government closest to common people. Local government is about government that involves the day-to-day life and problems of ordinary citizen. Local government believe करती है कि जो लोग रहते हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लोकल लेवल पे ही बेहतर तरीके से सुलझा सकती हैं. एंड लोकल गवर्नमेंट ये भी बिलीव करती है कि जो लोकल नॉलेज है, लोकल इंटरेस्ट है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है for democratic decisions making. So they are also necessary for efficient and people friendly administration.
The advantage of local government is that it is so near the people. It is convenient for the people to approach the local governments for solving their problems both quickly and with minimum cost. In the story of Geeta Rathod, we notice that she was able to bring about a significant change in Jamunia Tala because of her proactive role as Sarpanch of the Gram Panchayat. वेंगई वसल विलेज की अगर बात करें is able to still retain its land and the right to decide what to do with it because of the relentless efforts of its Gram Panchayat presidents and members. तो local government can be very effective in protecting the local interests of the people. Local government क्यों बनाई गई है? ताकि जो लोकल इंटरेस्ट है लोगों के उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि लोग पार्टिसिपेट करें, मीनिंगफुल वहां पे पार्टिसिपेशन हो. इट इज ऑल्सो अबाउट अकाउंटेबिलिटी. अगर आपने कोई अपना लीडर चुना है एंड आप उस लीडर से क्वेश्चंस कर सकते हो बिकॉज वो अकाउंटेबल उसको होना चाहिए और वो होगा ही. राइट. स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट्स इंश्योर करती है कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए सिटीजन्स का and purposeful accountability. Geeta Rathod's story is one of committed participation. Vengai Vasal village Gram Panchayat's relentless efforts to secure its right over its own land were an example of a mission to ensure accountability. So it is at the level of local government that जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में concerning their lives, their needs and above all their development. So it is necessary that एक democracy में task which can be performed locally should be left in the hands of the local people and their representatives. Common people are more familiar with their local government than with the government एट द स्टेट और नेशनल लेवल. अब ये क्यों बनाई गई थी? जैसे कि महात्मा गांधी का भी एक ड्रीम था, उन्होंने भी एक अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि लोकल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए. इस वजह से क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम जो गांव के लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे तभी हमारा जो भारत देश है वो आत्मनिर्भर होगा. हमें एक ऐसी गवर्नमेंट लानी है ताकि जो लोग आपस में ही लोकल लेवल पे ही अपने जो प्रॉब्लम्स है डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड वो सोल्व कर सके. सो दे आर ऑल्सो मोर कंसर्न विद वॉट local government does or has failed to do so as it has a direct bearing and impact on their day-to-day life. Thus, strengthening local government is like strengthening democratic process. इतना बड़ा इसको यहाँ पे जिम्मेदारी दे दी गई है कि अगर लोकल गवर्नमेंट को हम लोकल गवर्नमेंट ले रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जो लोकल पीपल है उनको मजबूत उनका सशक्तिकरण कर रही हैं. तो लोकल गवर्नमेंट का कुछ इतिहास है. चलिए लेट अस नाउ डिस्कस कि कैसे लोकल गवर्नमेंट ग्रो हुई है इंडिया में एंड व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट. इट इज बिलीव्ड दैट सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज एग्जिस्टेड in India from the earliest times in the form of sabhas, village assemblies. In the course of time, these village bodies took the shape of panchayats, an assembly of 5%, and these panchayats resolved issues at the village level. So their role and functions kept on changing at different points of time. अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम्स की तो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को क्रिएट किया था हमने 1882 के बाद में. लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें वॉइस रॉय थे इंडिया के एट द टाइम. लुक एट द इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग दीज बॉडीज. दे वर कॉल्ड द लोकल बोर्ड्स. हाउएवर ड्यू टू स्लो प्रोग्रेस in this regard, Indian National Congress urged the government to take necessary steps to make all local bodies more effectively. Following the Government of India Act 1999, विलेज पंचायत को बनाया गया
in a number of provinces. This trend continued after the Government of India Act 1935. इंडिया का जब फ्रीडम मूवमेंट हुआ, महात्मा गांधी हैड स्ट्रांगली प्लीडेड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर. तो महात्मा गांधी चाहते थे कि इकोनॉमिक पावर का भी डिसेंट्रलाइजेशन हो, विलेज लेवल तक ये चीजें जाएं. ही बिलीव्ड दैट कि अगर हम विलेज पंचायत को स्ट्रेंथन करेंगे, इसका मतलब है कि हम इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन को प्रैक्टिस कर पाएंगे. ऑल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स मस्ट हैव लोकल इन्वॉल्वमेंट इन इट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल. ये गांधी जी का विचार था. सो पंचायत देयरफॉर वर लुक्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आर. सो हमारे जो national movement है वो concerned about enormous concentration of powers in the hands of the Governor General sitting at Delhi. Therefore, our leaders' independence meant an assurance that there will be decentralization of decision making, executive and administrative power. यही मतलब है और यही चाहते थे हमारे leaders. So independence of India should mean independence of the whole of India. Independence must begin at the bottom. इस bottom से ही हमें start करना है. Every village will be a republic. It follows that therefore every village has to be self-sustained and capable of managing its affairs. In this structure composed of innumerable villages, there will be ever widening, ever ascending circles. Life will be a pyramid with the apex sustained by the bottom. महात्मा गांधी ये कहते थे. जब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया जा रहा था तो जो लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट था उसको स्टेट्स को दे दिया गया और ये भी वहां पे मेंशन किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एज वन ऑफ द पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू all government in the country. जो आपने चैप्टर 2 में भी देखा था. Being a part of the directive principle of state policy, this provisions of the constitution was non justiciable and primarily advisory in its nature. So हम जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं. ये सिर्फ नॉन जस्टिसेबल है. सिर्फ ये हम एक डायरेक्टिव्स होते हैं जो कि स्टेट्स के लिए होते हैं. स्टेट को इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. इट इज फेल्ट दैट द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत्स डिड नॉट रिसीव एडिक्वेट इम्पोर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. डू नो व्हाई दिस हैपन. पंचायत को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई. क्यों हुआ ऐसा? फ्यू रीजन कैन बी एडवांस्ड हियर. फर्स्टली टर्मोइल ड्यू टू द पार्टीशन. जो इतना ज्यादा एक शौक लगा था पार्टीशन की वजह से इन अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लाइनेशन और इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म कि वो थ्रेट होगा यूनिटी का एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन. तो नहीं चाहते थे कि जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट लेके आए क्योंकि वो चाहते थे कि सेंट्रलाइजेशन हो पावर का, क्योंकि अभी हमने एक पार्टीशन की वजह से टर्मोइल को फेस किया है. Secondly, there was a powerful voice in the Constituent Assembly led by Dr. B.R. Ambedkar, which felt that the faction and caste-ridden nature of rural society would defeat the noble purpose of local government at the rural level. However, nobody denied the importance of people's participation in developing planning. Many members of the Constituent Assembly wanted village panchayat to be the basis of democracy, but they were concerned about factionalism and many other ills present in the villages. Okay, fine. In the interest of democracy, villages may be trained in the art of self-government, even autonomy. We must be able to reform the villages and introduce democratic principles of government there. तो ये क्या कौन है भाई? ये है अनंथा सयनम अय्यंगर. लोकल गवर्नमेंट
in independent India. Local government got a flip after 73rd 74th constitution amendment जब होता है, but even before that some efforts in the direction of developing local government bodies had already been taken place. First in the line was the Community Development Program 1952 में, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रमोट कर रहे थे पीपल्स का पार्टिसिपेशन लोकल डेवलपमेंट में इन अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज. इन दिस बैकग्राउंड अ 3-tier पंचायत राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड फॉर द रूरल एरियाज. कुछ स्टेट्स जैसे कि भाई गुजरात, महाराष्ट्र ने जो लोकल इलेक्टेड लोकल बॉडीज है उसको 1960 में ही अडॉप्ट कर लिया है. तो ये पूछा जा सकता है, गुजरात एंड महाराष्ट्र ने 1962 में सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया, बट बहुत सारे स्टेट्स में ये लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव इनफ पावर एंड फंक्शंस टू लुक आफ्टर द लोकल डेवलपमेंट. सो दे वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट. बहुत सारे स्टेट्स को भी ये लगता था कि हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए इलेक्टेड लोकल बॉडीज को. इन मेनी इंस्टांसेस लोकल बॉडीज वर डिसॉल्व्ड एंड द लोकल गवर्नमेंट वाज हैंडेड ओवर टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स. Many states had indirect elections to most local bodies. In many states, elections to the local bodies were postponed भी किए जाते थे time to time. 1987 के बाद थोरो रिव्यू होता है लोकल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग में. सो 1989 में क्या होता है, पीके थुंगन कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है ताकि पीरियडिक इलेक्शंस हो जाए लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, एनलिस्टमेंट हो जाए अप्रोप्रिएट फंक्शंस का, उनके क्या क्या फंक्शंस है उनको बता दिए जाए, फंड्स भी उनको मिला, ये सब यहाँ पे रिकमेंड होता है. तो उसके बाद देखते हैं कहानी. 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते हैं 1989 में, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. दीज अमेंडमेंट एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट and ensuring an element of uniformity in their structure and functioning across the country. Constitution of Brazil has created states, federal districts and municipal council. Each of these is assigned independent powers and jurisdiction. Just as the republic cannot interfere in the affairs of the states, states are prohibited from interfering in the affairs of the municipal council. This provision protects the powers of the local government. So later in 1992 73rd 74th constitutional amendments आता है, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है. 73rd अमेंडमेंट होता है लोकल रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जिसको हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के नाम से भी जाने जाते हैं, जानते हैं. एंड 74th अमेंडमेंट आता है, मेड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नगर पालिका. 73rd 74th अमेंडमेंट 1993 में फोर्स में आते हैं. सो वी हैव नोटिस अर्लियर दैट लोकल गवर्नमेंट एक स्टेट सब्जेक्ट है. स्टेट्स कुछ भी लॉज बना सकते हैं इस सब्जेक्ट्स पे, बट जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, स्टेट्स को चेंज करना है उनके लॉस को अबाउट लोकल बॉडीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस कन्फर्मिटी विद द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन. And they were given 1 year's time for making necessary changes in their respective state laws in the light of these amendments. अब बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट की. Let us now examine the changes जो कि 73rd अमेंडमेंट की वजह से आते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में. सो 3-tier स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ऑल स्टेट नाउ हैव अ यूनिफॉर्म 3-tier पंचायत राज स्ट्रक्चर. एट द बेस इज द ग्राम पंचायत. A gram panchayat covers a village or group of villages. Intermediary level is the mandal, also referred to as block or taluka. These bodies are called mandal or taluka panchayats. Intermediary level body need not to be constituted in smaller state. At the apex is the Zilla Panchayat, covering the entire rural area of the district.
सो विलेज लेवल पे बेस पे होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कवर्स करता है विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। इंटरमीडिएट लेवल पे होता है मंडल, जिसको हम ब्लॉक या फिर ताल्लुक भी बोलते हैं। दीज बॉडीज आर कोल्ड मंडल और तालुका पंचायत। इंटरमीडिएट लेवल बॉडी नीड नॉट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्मॉल स्टेट। एपेक्स पे जिला परिषद होता है। उसके बाद फिर अगर हम देखें, अमेंडमेंट ऑल्सो मेड प्रोविजन फॉर द सेकेंडरी क्रिएशन ऑफ द ग्राम सभा। सो ग्राम सभा वुड कंप्राइज ऑल द अडल्ट मेंबर्स registered as voters in the panchayat area. Its role and functions are decided by state legislation. ग्राम सभा इलेक्शंस की बात करें, 3 लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली लोगों द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी इज 5 years. If the state government dissolves the panchayat before the end of its 5-year term, then फिर से फ्रेश इलेक्शंस को होना होता है 6 months के अंडर। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोविजंस दैट इंश्योर्स करता है एग्जिस्टेंस इलेक्टेड लोकल बॉडीज की बिफोर द 73rd अमेंडमेंट। बहुत सारे स्टेट्स में देयर यूज्ड टू बी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे टू द डिस्ट्रिक्ट बॉडीज एंड देयर वाज नो प्रोविजंस फॉर इमीडिएट इलेक्शंस आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी होते थे। रिजर्वेशंस की बात करें, 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई है विमेन के लिए। शेड्यूल कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है। तीनों लेवल पे इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशंस के हिसाब से। इफ द स्टेट्स फाइंड इट्स नेसेसरी दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर द OBCs. So it is important to note that these reservations apply not merely to ordinary members in panchayats but also to the positions of chairpersons, जिसको हम अध्यक्ष भी बोलते हैं chairperson को, at all the 3 level. Further, reservation of 1/3 of seats for women is not merely in the general category of seats but also within the seats reserved for scheduled castes, scheduled tribes and backward castes. So this means that a seat may be reserved simultaneously for a woman candidate and one belonging to the scheduled castes or scheduled tribe. Thus a sarpanch would have to be a Dalit woman or an Adivasi woman. इसका मतलब दोबारा हम समझते हैं, रिजर्वेशन जो है 1/3 सीट्स का is not merely in the general category of seats but also within the seat जो कि scheduled castes के लिए रिजर्व्ड है, ट्राइब्स के भी लिए भी रिजर्व्ड है, बैकवर्ड सीट्स के भी castes के भी लिए भी रिजर्व्ड है। इसका मतलब है सीट में भी रिजर्व साइमल्टेनियसली एक वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एंड वन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। सरपंच वुड हैव टू बी ए दलित वुमेन और एन आदिवासी वुमेन। सरपंच कौन होगी? या तो वो एक दलित होगी या फिर एक आदिवासी होगी। तो यहाँ तक आज इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जल्दी आएगा, तब तक के लिए चैनल